Students, we have already discussed about herbivores and carnivores. Let us see what omnivores are. Herbivores eat only plants. So we know that herbivore animals eat only plants. Carnivores eat only flesh. Yes, we know this too, that carnivores likes to eat flesh. Which animals eat both plants and flesh? So children, earlier we have discussed about this, that the animals who eat both plants and flesh are nothing but omnivores. So children, underline this sentence: animals that eat both plants and other animals are called omnivorous animals or omnivores. So the animals, particularly plant eating animals को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? herbivores. Only flesh eating animals, they are carnivores. But the animals, those who eat both plant and animal, दोनों को जो खाते हैं उनको हम बोलते हैं omnivores. So which are such animals? Bears, crows, squirrels and rats are some examples of omnivorous animals. So these are the examples of omnivorous animals. In figure 4.6 we can see a crow, which is an omnivore because crow likes to eat grass, grains, ये सब भी खाते हैं, seeds जो plant से आने वाली हर चीज़ खाते हैं crow. But other than that, see here, it is eating an insect, the flesh of some insect. So crow eats both plants and animals. Hence we can say that crow is an omnivore because crow both flesh भी खा रही है और plants भी खा रही है. That's why जो animals both flesh and plants दोनों को खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? Omnivorous animals or omnivores. Human beings also eat both plants and animals, isn't it children? कुछ लोग only plant and plant products ही खाते हैं, जैसा vegetables plant की हर part से कुछ parts vegetable, we are going to eat the leaf portion also, leafy vegetables, root portion also, just like carrots and radishes, and even flowers like cabbage and cauliflower, and even so many vegetables that which grow on their stems and branches, all these, isn't it? But human beings, कुछ human beings है जो non vegetarian होते हैं, they also used to eat the flesh of animals, मतलब chicken, mutton, fish is also a water animal. So इन सबको भी वो खाते हैं. So human beings भी omnivores कहा जाता है because they eat both plants and animals. So we can call human beings also as omnivores. So children, this is all about omnivores. Now let us move ahead into the chapter. The next topic is food chain. Have you ever heard this word children? कभी तो सुना नहीं होगा. I think this is a new word for you. What do you mean by a food chain? Food chain क्या होता है? All animals, सारे animals, where they depend directly or indirectly on plants for their food. So for their food, animals किसके ऊपर depend होते हैं food के लिए? जैसे अपने घर पे बच्चे किसके ऊपर depend होते हैं? घर के elders के ऊपर, may it be grandma, mother, whoever it may be, they used to make food and give it to them. But here animals directly या indirectly, all animals are dependent on plants for food. plants के ऊपर animals depend है मतलब अगर plants नहीं हो तो animals won't be there because they can't get their food. How animals can grow and live, है ना? So that's why all animals, most of the animals, सारे animals plants के ऊपर डायरेक्टली वो प्लांट खाते हैं या इनडायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट्स खाने वाले को खाते हैं. कैसे भी हो, वो प्लांट्स के ऊपर अपनी फूड के लिए आधारित है. डिपेंड मीन्स आधारित होना. herbivores depends on plants directly for their food. जैसा herbivores है, जैसा अपना काउ, शीप, बफेलो, गोट्स, ये सब क्या करते हैं? डायरेक्टली प्लांट्स, ग्रास यही तो खाते हैं. सो प्लांट्स चाहिए ही चाहिए herbivorous animals के लिए ताकि वो खाएं, उनको एनर्जी मिले, so that they can do their work, they can even provide us with so many other things. So what if they eat, they can give other items on which human beings are also dependent. So herbivorous animals डायरेक्टली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं. कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स ईट हेर्बिवोर्स. कार्निवोर एनिमल्स क्या करते हैं? वो हेर्बिवोर्स को खाते हैं. मान लीजिए अभी गोट है, एक लायन को कहीं गोट दिख गया तो गोट को लायन मार के उसको हंट करके वो उसका प्रे बना के वो अपना
फूड खाता है। तो अगर लायन ने गोट खाया तो कैसा खाया, बिकॉज गोट इज़ ए हेर्बिवोरस एनिमल, गोट भी प्लांट खाई है तो प्लांट खा के बड़ी हुई, तभी जाके तो लायन भी अपना खाना ले पाई गोट को, इजंट इट। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर ही आधारित है सारे एनिमल्स। सो इफ़ देर आर नो प्लांट्स, मान लीजिए अगर प्लांट्स नहीं है, देर वुड बी नो हेर्बिवोर्स ऑब्वियसली, बिकॉज इफ देर आर नो प्लांट्स देर विल बी नो ऑक्सीजन, देर विल बी नो लाइफ, एंड ऑब्वियसली अगर प्लांट्स है ही नहीं है तो ये हेर्बिवोर वाले एनिमल्स कहाँ से खाना खाएंगे, दे कांट गेट एनी फूड, there would be no herbivores, so carnivores also depend indirectly on plants for their food। so इससे आपको क्या समझ में आया बेटा, कार्निवोर्स भी फूड के लिए, अब कार्निवोर्स को आपको डाउट, मैम कार्निवोर्स वोंट ईट प्लांट्स, बट प्लांट्स नहीं खाएंगे तो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स को तो खा रहे हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स हेर्बिवोर्स को तो खा रहे, तो हेर्बिवोर्स कहाँ से आए हैं, वो ग्रास प्लांट प्रोडक्ट्स खा के तो बड़े हुए हैं। सो दीज एनिमल्स आर गोइंग टू ईट दीज हेर्बिवोर्स, सो दैट्स वाई। जैसा वाइल्ड एनिमल्स में आप जेब्रा देखो, डियर देखो, हिप्पो देखो, उन सबको भी कभी बड़े बड़े एनिमल्स जैसा टाइगर, लायन ये सब शिकार करके उनको भी खाते हैं। तो ये जिराफ और लायन, ये जिराफ और डियर ये सब कैसे बड़े हुए हैं, हाउ दे वर ग्रोन, हाउ दे बिकम द प्रे फॉर देम, बिकॉज दे यूज टू ईट ग्रास एंड लीव्स एंड ऑल दिस फॉर देयर लिविंग। तो कभी ना कभी उनका शिकार बन के उनकी खाना बन गए। सो कार्निवोर्स ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सो लेट अस see an example given here children, इधर एक एग्जाम्पल है, ये देखिए आप, the deer eats the grass, grass क्या है, this is a type of plant, so deer it is a herbivore animal, deer एक herbivore है और ये deer प्लांट को खा के ये बड़ा हुई है। एंड द लायन ईट्स द डियर, लायन का फूड क्या है, डियर, तो ये डियर कैसा बड़ी हुई है, प्लांट्स खा के, और ये लायन किसको खा रही है, डियर को, या डियर नहीं है तो दूसरा कुछ कोई भी एनिमल हो सकता है, राइनो, जिराफ, ज़ेब्रा, किसी को भी खा सकता है। तो अगर डियर को लायन खा रही है तो लायन भी तो ग्रास पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली लायन जाके ग्रास नहीं खाएगी, फिर भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स को तो खाते हैं। दैट इज़ द थिंग हियर, दिस इज़ नोन एज ऐसी जो एक एनिमल दूसरे एनिमल, सारे एनिमल्स फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। सो इससे आपको क्या समझ में आया, मे इट बी हेर्बिवोर्स और कार्निवोर्स, ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फूड चेन, व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन, फूड चेन शोज द ऑर्डर, ये हमको एक ऑर्डर दिखाते हैं, इन विच लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, मतलब अपनी इस यूनिवर्स में हर लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर आधारित है, किसके लिए, फूड के लिए। कैसा, जैसा वी आर ह्यूमंस, सो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑब्वियसली ना, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो अगर कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स का, अगर अपन फॉरेस्ट में गया, कहीं अपना रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो गया, तो इवन वाइल्ड एनिमल्स में अटैक अस एंड दे विल ईट अस। सो हम, ह्यूमन बीइंग इज अ लिविंग थिंग, वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। सो हर लिविंग थिंग्स का फूड चेन, एक फूड चेन होता है। वो फूड चेन क्या शो करता है, इट विल शो द ऑर्डर, एक ऑर्डर आपको बताएगी कि इन विच लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा अपनी ह्यूमन बीइंग्स में कुछ जो वेजिटेरियंस है वो कभी भी फ्लैश वगैरह, मीट ये सब नहीं खाते हैं। सो व्हाट दे यूज टू, दे वो मांस वाले पदार्थ कुछ नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं, दे यूज टू दे आर डिपेंडेंट ऑन सम एनिमल प्रोडक्ट्स, मांस नहीं खाते हैं, फिर भी दे यूज टू हैव मिल्क, बटर, कर्ड, पनीर, ये सब क्या है, ये सब एनिमल की तो प्रोडक्ट्स है। तो ह्यूमन बीइंग प्लांट्स पे, एनिमल्स पे अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट है, और प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, विच विल बी गिवन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, है ना। और प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। तो हम प्लांट्स के ऊपर हर तरीके से ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट। इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो, हेर्बिवोर्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है एंड ओमनिवोर्स हेर्बिवोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो ऐसा सबकी एक कनेक्शन है, isn't it? So human beings, all living things are dependent on one another for food। जैसा हम प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स अपने ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओमनिवोर्स हो, हेर्बिवोर्स हो, वो सब भी
प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। सो ये फूड चेन जो है हमको एक ऐसा ऑर्डर बताता है जिससे हमें ये समझ में आता है कि सारे लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर अपनी फूड के लिए सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। Okay children, so let us read this line again. Food chain shows the order in which living things depend on each other for food. एक दूसरे के ऊपर लिविंग थिंग्स अपने फूड के लिए कैसा आधारित है, ये चीज़ हमें कौन बताएंगे? फूड चेन। फूड चेन एक ऑर्डर दिखाता है, जैसा ये एग्जाम्पल, दिस इज द फिगर 4.7 इज द एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। जैसा हियर ग्रास इज देयर, सो ग्रास कौन खाते हैं? डियर। डियर को कौन खाते हैं? लायन। सो इससे हमें क्या समझ में आया? ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर फूड, एक दूसरे के ऊपर हम आधारित है। मोस्ट फूड चेन्स स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स, मोस्टली ज़्यादातर फूड चेन्स प्लांट्स से स्टार्ट होते हैं। अ प्लांट ईटन बाय एन एनिमल, जैसा डियर ने प्लांट ईट किया इधर, एंड द सेम एनिमल इज इन टर्न ईटन बाय अनदर एनिमल। सो ये हेर्बीवोर को कौन खाएंगे? एक कार्निवोर एनिमल खाएंगे, लाइक लायन, टू फॉर्म ए फूड चेन। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। मतलब ये इसके ऊपर डिपेंडेंट, ये इसके ऊपर एक ऐसा चेन, एक ग्रुप फॉर्म किया कि हर एक लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग पे अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड चेन। सो चिल्ड्रन गो थ्रू द topic thoroughly so that you can understand easily. We have discussed about herbivores, carnivores, omnivores and the food chain which shows the order in which living things depend on each other for food.